اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر روز یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ہی صحیح مگر پابندی کے ساتھ آپ چینل کی 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم اعلان کر دیتے ہیں، آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات میں 9:30 بجے اسی چینل پر جو ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، تو آئندہ کل کے بیان کا اہم عنوان ہوگا، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ اب جانتے ہیں کہ 4 دن کے بعد میں 15 اگست آئے گا، اور 15 اگست کو ہم، ظاہر بات ہے کہ اس سال تو 75واں آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، تو اس ملک کو آزاد کرانے میں کیسی کیسی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے دی ہے، اور آج ملک کا کتنا برا حال ہو چکا ہے، اور آج بھی کن کن چیزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا ہمارا ضروری ہے، اور کیسے اس ملک کی ایکتا، امن، شانتی کو بچانا ہے، اس پر بہت اہم بات ہوگی۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنانا تاکہ اپنے بزرگوں کے نام ان کو پتہ چلے کہ ہمارے کن کن بزرگوں نے کتنی اور کیسی کیسی قربانیاں اس پیارے ملک کو بچانے کے لیے دی ہے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر پھر اس وقت فلسطین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج کی درندگی، اسرائیلی فوج کا آتنکواد لگاتار شروع ہے، اور گزشتہ کل بھی 3 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور اب 40 کے اوپر یوں سمجھے کہ شہیدوں کا آنکڑا پہنچ گیا ہے، اور 40 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے علاقے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی درندوں نے ایک گھر پر چھاپے کے دوران سینئر فلسطینی مزاحمت کار سمیت 3 افراد کو گزشتہ کل قتل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گرد ابراہیم اور اس کے ساتھ موجود ایک اور دہشت گرد کو جان سے مار دیا گیا ہے۔ خیر، غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے سرحد پار تشدد کا بدترین سلسلہ، ہنسا اور آتنکواد کا بدترین سلسلہ 3 روز تک جاری رہا، اور ابھی مصر کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، اور ابھی کہیں نہ کہیں معاملہ تھما ہے، لیکن اب تک کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیلی آتنکواد کا شکار ہو چکے ہیں۔
मासूम छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के जनाजे नजर आ रहे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरे आलम इस्लाम को झंझोड़ रहे हैं। मगर अजीब बात है, अजीब बेगैरती, बेशर्मी और बेहिसी है कि आलम इस्लाम इस पर पूरी तरीके से खामोश नजर आ रहा है। लगता है कि अल्लाह किसी हाल आलम इस्लाम को माफ नहीं करेगा। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारा गया। FBI ने छापा मारा और खबरें हैं कि फ्लोरिडा वाली जो उनकी रिहाइशगाह है, ट्रंप का जो बंगला है फ्लोरिडा का, वहां पर एक सेफ को भी तोड़ दिया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, अपने बयान में कहा है कि ये सब मुझे रोकने, दबाने और कुचलने की कोशिश है ताकि मैं दोबारा सदारती इलेक्शन में हिस्सा न ले सकूं। साबिक सदर ट्रंप ने अपने बयान का आगाज करते हुए कहा कि यह हमारी कौम के लिए तारीख वक्त है। उनका कहना है ट्रंप का कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका हुकूमती एजेंसियों से ताउन किया है, मदद की है, लिहाजा उनकी रिहाइशगाह पर, उनके घर पर गैर एलानिया छापा मारना ज़रूरी और मुनासिब नहीं था। ट्रंप ने कहा है कि ये सब कोशिशें हैं कि दोबारा व्हाइट हाउस के लिए मैं इलेक्शन लड़ ना सकूं। मुझे डराने और दबाने और कुचलने के लिए यह हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और छापे मारे जा रहे हैं। यानी गोया के जैसे हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जो तरीका है वही तरीका अमेरिका भी इख्तियार कर रहा है कि किसी को भी अपोजिशन को दबाना और कुचलना हो तो जनाब ED CBI का इस्तेमाल करो। ऐसे ट्रंप कहते हैं कि मेरे लिए भी ऐसे ही बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। FBI के छापे मारकर मुझे दबाने, कुचलने और खामोश करने की और इलेक्शन से रोकने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त बरतानिया से चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, बरतानिया में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है और आवाम को, वहाँ की बरतानिया की जनता को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत को अब दबाव का सामना है। बढ़ती महंगाई के बहरान के वजह से बरतानवी हुकूमत को ख़ानदानों की किफ़ालत के लिए फौरी तौर पर मंसूबे तैयार करने के लिए सख्त दबाव का सामना है। जबकि मारूफ कारोबारी ग्रुप और साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि सियासी खला को ज़्यादा देर बरकरार रहने दिया नहीं जा सकता। डॉन अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुज़िश्ता हफ्ते मुतनब्बे किया था कि तवानाई की कीमतें गैर मामूली सतह तक बढ़ने की वजह से तवील माशी बदहाली और बेरोजगारी के आसार नजर आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क इस्लामाबाद पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। शिमाली वजीरिस्तान से, पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसका एक ज़िला है वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक खुदकश धमाका हुआ जिसमें 4 फौजी शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने प्रेस रिलीज में बताया कि खुदकश हमले में शहीद होने वाले जवानों में एक 22 साल के शाहजेब है और 26 साल के सज्जाद है और 25 साल के एक सिपाही उमैर है और 30 साल के सिपाही खुर्रम शामिल है। उन्होंने कहा है कि शिमाली वजीरिस्तान में खुदकश हमले के नतीजे में ये जवान शहीद हुए। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है, मजम्मत की है और गहरे दिली दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे तक पूरी कौम एक होकर, मुत्तहिद होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करती रहेगी। नाज़रीन, आइए अमेरिका से बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में अमेरिका की एक रियासत में न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों का सिलसिलावार कत्ल का मामला सामने आया। इसको लेकर वहाँ पर मुसलमानों में ख़ासतौर से खौफ और हिरास और डर का माहौल नज़र आ रहा था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट सदर जो बाइडन ने मुसलमानों पर हमलों की मजम्मत की, निंदा की। जी हाँ, ये खबर इसलिए भी अहम है कि मुसलमानों का कत्ल अगर वहाँ पर हुआ तो वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं,
मुंह खोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। वरना कुछ मुल्कों में तो लगातार हर दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उन पर हमले होते हैं, उनका कत्ल होता है, लेकिन वहाँ के वजीर आजम के मुंह को भी सांप काट जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट और तमाम आला अधिकारियों के मुंह को भी सांप काट जाता है। जबकि कम से कम अमेरिका में ये तो हुआ कि 4 मुसलमानों का कत्ल हुआ तो अमेरिका के सदर ने बाकायदा हमलों की निंदा की और मजम्मत की है। और यही नहीं, उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि मैं गमज़दा हूँ इन हमलों से, जबकि ये भी कि हम मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ है, मेरी इंतज़ामिया, मेरी मैनेजमेंट, मेरी पुलिस, मेरी सरकार मजबूती के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ी है और इस तरह के नफ़रत अंगेज़ हमलों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। ऐ काश कि दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट और दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म भी ऐसी बातें कम से कम ज़रूर कहे। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।